ایک تو آپ لوگوں نے کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی، اس سے پہلے آپ نے ایک ٹویٹ کر دی کہ میرا نام نہیں ڈالا گیا۔ کم از کم بحیثیت نمائندہ یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اس فورم کے اوپر اپنے علاقے کے لیے بات کرتا۔ آپ لوگوں کی ملاقات بھی نہیں ہو سک رہی، آپ لوگ جاتے ہیں، خان صاحب نے متعدد بار نام لے کے کہا ہے کہ ان کو بلاؤ، میری ان سے ملاقات کرواؤ، کیا ابھی تک کوئی ملاقات ہو سکی؟ نہیں ہوئی میری ملاقات ابھی تک۔ یہ تو ایک ایسا قومی معاملہ ہے کہ اس پہ چاہے شاید کٹک ہو یا کوئی نون لیگ کا کوئی دوست ہو، پیپلز پارٹی کا، اس پہ تو آپ سب کو ایک ہونا چاہیے نا جو اس طرح کے معاملات۔ کردار مشکوک ہو گئے اداروں کے اس ملک میں۔ آپ لوگ لے کے آئے نا، خواجہ آصف صاحب بار بار کہتے ہیں کہ عمران خان کی دور حکومت میں آپ لوگ وہاں سے لوگوں کو لے کے آئے اور ادھر بسائے، اور اب آپ شور کر رہے ہیں۔ ہمارے خیبر پختونخوا کے مراد سعید، علی محمد، انہوں نے اپوز کیا اس میٹنگ میں۔ آپ لوگوں کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان پہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ماحول خراب ہوتا ہے، وہ اکاؤنٹس پاکستان میں لے آئیں تو کیا چل جائیں گے پاکستان سے؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ آپ کا لیڈر تو خود جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور باہر آپ لوگوں سے کوئی تحریک نہیں بن رہی، یہ تنقید ہوتی ہے۔ شیل بھی مارے گئے، ہمارے اوپر گولیاں چلائی۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے، نوجوان رہنما اور ان سیاستدانوں میں جن کو ہم اپنا دوست کہہ سکتے ہیں، شاہد خٹک صاحب نے ہمیں جوائن کیا، شاید بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایک تو میں پہلے ٹویٹ کا پوچھنا چاہوں گا، ایک تو آپ لوگوں نے کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی، اس سے پہلے آپ نے ایک ٹویٹ کر دی کہ میرا نام نہیں ڈالا گیا۔ آپ کا جو علاقہ ہے وہاں پہ امن و امان کا بڑا ایشو ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے آپ نے امن مارچ کیا، آپ کو ذاتی طور پہ تھریٹس بھی ہیں، بہت سارے مسائل ہیں وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود آپ کی جماعت نے آپ کا نام اس کمیٹی میں ڈالا ہی نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطہر بھائی، پہلی بات یہ کہ جو میرے ضلع میں امن و امان کی سچویشن ہے پچھلے تقریباً ہفتہ 10 دن سے، میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ جب 2002 یا 9/11 کے بعد جب یہ دہشت گردی کی لہر اٹھی خیبر پختونخوا، ایکسپارٹا، امر ڈسٹرکٹ میں، یا افغانستان کا جو ایشو تھا، تو ایک ضلع جو خیبر پختونخوا میں جو سب سے پرامن رہا وہ کرک تھا۔ ایک پٹاخ الحمدللہ پچھلے 25-30 سال کی اس پوری دہشت گردی کی لہر میں ہمارے ضلع میں یہ سچویشن نہیں بنی، لیکن ابھی ریسنٹلی موومنٹ سٹارٹ ہو گئی۔ اس کے بعد ہمارے پولیس تانوں کے اوپر مختلف ٹائم میں اٹیک شروع ہو گئے، اور اس کے علاوہ اور بھی موومنٹس ہیں ان لوگوں کے۔ تو میں یہی چاہ رہا تھا کہ اگر اس فورم میں اگر ہم گئے، عمران خان صاحب نے اپروول دی، پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا، تو کم از کم بحیثیت نمائندہ یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اس فورم کے اوپر اپنے علاقے کے لیے بات کرتا، اس کے امن کی بحالی کے لیے سجیشنز بھی دیتا، اور اپنے علاقے کے امن کی بحالی کے لیے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ امن ہمارے لیے ان نالی گلیوں اور ان ڈیولپمنٹ سے بڑھ کے ہے۔ دیکھیے اچھا، اس میں جو پہلے لسٹ سامنے آ گئی، بعد میں اس وقت بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب سے تو مشاورت نہیں ہوئی۔ اب آپ وہ لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب بڑا پسند بھی کرتے ہیں، ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں، آپ لوگوں کے حوالے سے وہ کہتے ہیں یہ میرے نوجوان لیڈر ہیں، آپ لوگوں کی ملاقات بھی نہیں ہو سک رہی، آپ لوگ جاتے ہیں، خان صاحب نے متعدد بار نام لے کے کہا ہے کہ ان کو بلاؤ، میری ان سے ملاقات کرواؤ، کیا ابھی تک کوئی ملاقات ہو سکی؟ نہیں ہوئی میری ملاقات ابھی تک، نہ میری ہوئی، نہ سہیل افریدی کی ہوئی ہے، مینا خان کی ہوئی ہے، یا جتنے ہمارے نوجوان لیڈرز ہیں جو مطلب عمران خان صاحب کے برینڈز ہیں، تو ان کی ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو خان صاحب سے مشاورت کرنا کتنا ضروری ہے اس طرح کے معاملات میں، یا پھر اب پارٹی اتنی انڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ لوگ باہر بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے؟ عمران خان صاحب جتنا افغانستان اور اس امن و امان کے حوالے سے، یا ڈرون کے حوالے سے، یا آپریشنز کے حوالے سے، عمران خان صاحب نے جتنا اس معاملے کو قریب سے وہ جانتے ہیں، جتنے قریب سے وہ اس معاملے کو بہترین آپ کو ڈیل کر دے سکتے ہیں، کوئی لیڈر نہیں کر کے دے سکتا۔ دیکھیں، ایک واحد لیڈر تھا جو بار بار ہمیں الرٹ کر رہا تھا اس ٹائم بھی کہ جی بیرونی جنگوں میں آپ نہ کودیں، بیرون لوگوں کو خوشنودی کے لیے آپ آپریشن نہ کریں اپنے ایکس فاٹا میں۔ تو جب ہم نے وہاں پہ آپریشنز کیے، وہاں پہ مار داڑ ہوئی، کولیٹرل ڈیمیج ہوا، ہمارے فورسز کے لوگ شہید ہوئے، ہمارے سیویلین شہید ہوئے، ہمارے علماء کرام 80-90 ہزار لوگ شہید ہوئے اطہر بھائی، جو پریویس جو دہشت گردی کی لہر چلی خیبر پختونخوا میں۔ اور ابھی اس ٹائم مائنڈ سیٹ بھی کچھ الگ ہے۔ پر یہ دیکھیں نا، یہ تو ایک ایسا قومی معاملہ ہے کہ اس پہ چاہے شاید کٹک ہو یا کوئی نون لیگ کا کوئی دوست ہو، پیپلز پارٹی کا، اس پہ تو آپ سب کو ایک ہونا چاہیے نا جو اس طرح کے معاملات۔ دیکھیں، ابھی ہم ہر کردار مشکوک ہو گئے اداروں کے اس ملک میں۔ دیکھیں، محسن نقوی کی وجہ سے اس ٹائم آدھے سے زیادہ پاکستانی چاہتے کہ جی قوم جو ہے وہ کرکٹ ہار جائے، ان کو خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محسن نقوی سے نفرت کرتے، کرکٹ سے نفرت نہیں کرتے۔ اسی طرح جب آپ جنگیں لڑتے ہیں تو جنگوں میں
कोई उसमें पुल नहीं बरसते, उसमें जंगों में वहां पे फायरिंग होती है, मतलब गोले चलते हैं, वहां पे फायर मारे जाते हैं, स्नाइपर चलते हैं, तो उस कोलेटरल डैमेज में गोली ये नहीं देखती कि मैं शायद खट्टा को मार रहा हूँ या आतंक आदमी को मार रहा हूँ या दहशतगर्द को मार रहा हूँ या अमन पसंद को मार रहा हूँ। तो वहां पे दहशतगर्दी की आड़ में हमारे अमन पसंद लोग शहीद हुए उस पूरे उस फेज में। तो अभी हमारे लोगों को यही लग रहा है कि ये कैसे आ गए, कहां से आ गए। जब हम अलर्ट कर रहे थे इदारों को तो उन्होंने कहा जी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, फिर कहा कि आए स्वाद से वापस चले गए। नहीं, पर वो तो शायद साहब आप लोग लेके आए ना। ख्वाजा आसिफ साहब बार बार कहते हैं कि इमरान खान की दौरे हुकूमत में आप लोग वहां से लोगों को लेके आए और इधर बसाए और अब आप शोर कर रहे हैं। अभी मैं आपके साथ फैक्ट एंड फाइंड के ऊपर बात करूंगा। मैं तारीख बतारी, इससे पहले जब हमारी गवर्नमेंट थी, जब सिक्योरिटी रिलेटेड मीटिंग हुई पीएम हाउस में, उसमें ये मिनट्स में है कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के मुराद सईद, अली मोहम्मद, इन्होंने अपोज किया उस मीटिंग में। 5 उस बुनियादी नुकात थे, उसमें 5 नुकात, पांचों के पांचों नुकात के ऊपर जनरल बाजवा भी बैठे थे, जनरल फैज भी बैठे थे। जब काउंटर आर्गुमेंट्स हुए हमारे काबीना के अरकान की जानिब से, तो इमरान खान साहब ने उस फैसले को मौखर कर दिया था कि ये सेटलमेंट, ये चीजें जो है ये हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हमने खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ना लिया हो, जब तक खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को हमने एतमाद में ना लिया हो, तो उसके बाद तो जो सबसे ज्यादा शोर मचाया, जो सबसे ज्यादा रिजिस्ट किया, हमारी जमात ने किया। मुराद सईद ने अमन की कॉल दी खैबर पख्तूनख्वा में। इससे पहले हमने मार्च किए 17-18 जिलों में हम गए, वहां पे अमन मार्च हुए, लोग खुद निकले अपने अमन के लिए। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ी सी अब सियासत पे भी करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली खान साहब जो जेल में है, अब रिसेंटली कोई बंदा ये कह रहा है कि खान साहब को भी इस चीज का अंदाजा हो गया कि हुकूमत मुझे छोड़ेगी नहीं, ये लंबा अरसा मुझे जेल के अंदर रखेंगे। तो उसके मुकाबले में आप लोगों की क्या हिकमत अमली है? आपको लगता है कि खान साहब को हुकूमत की ख्वाहिश है कि लंबा अरसा जेल में रखा जाए? देखिए, ये उनकी डे फर्स्ट है, ये ख्वाहिश है अतर भाई। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान को गैर मकबूल करें, फिर कभी 9 मई की आड़ में, कभी मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे किए गए, पर्सनल अटैक्स हुए कि किसी ना किसी तरीके से हम इमरान खान को गैर मकबूल करें और कौम जो है वो इमरान खान साहब से पीछे हट जाए। देखिए, मसला मेरा और आपका नहीं है, मसला कौम का है। कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। इस टाइम इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का सरबराह है, तो कौन उसे लंबा अरसा रख सकता है? कब तक बर्दाश्त करेंगे? अब देखिए, ये इनकी ख्वाहिश जरूर हो सकती है, हमारी भी कुछ कमजोरियां होंगी, ये नहीं कि हमारी कुछ कमजोरियां नहीं है, कहीं ना कहीं पे हमारी कमजोरियां हैं, लेकिन हम उन कमजोरियों को भी कहते हैं कि जी आप लोगों के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे इस किस्म की बातें होती हैं, माहौल खराब होता है, वो अकाउंट्स पाकिस्तान में ले आए, इधर से ऑपरेट करें, तो क्या चल जाएंगे पाकिस्तान से? इसकी कोई गारंटी है? अभी एक कल ही नूरानी ने जो ट्वीट्स किए थे, उसके साथ क्या हुआ, उसकी फैमिली के साथ क्या नहीं हुआ? उसको कल ही रात पेंटी पड़ी है उसकी फैमिली को। देखिए, इस मुल्क में राय की आज़ादी जो है, कभी पीका के नाम के ऊपर, कभी साइबर क्राइम के नाम के ऊपर, राय की आज़ादी वैसे भी ये लोगों से लेते हैं। और रही बात सोशल मीडिया अकाउंट्स की, तो देखिए, सोशल मीडिया से क्या ऐसी चीज ट्वीट हुई होगी कि उनको तकलीफ होगी? अगर आप हमारे लीडर को, लीडरशिप को, हमारे कारकुनान को, उन सबको जेलों में डालें, हमारे पार्टी के ऊपर जो जुल्म, जो जबर का हमने मुकाबला किया, तारीख में कभी नहीं हुआ, वो सब चीजें छोड़ के इनको सिर्फ एक ट्वीट से मसला है। वो उनको उन प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों नहीं मसला था कि आप बतौर जबर लोगों को पार्टी से अलग कर रहे थे? उनका तो इनको कोई अफसोस नहीं था। सोशल मीडिया से ये डरे हुए, और ये इसलिए डरे हुए क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम पाकिस्तान की तारीख की सबसे मकबूल जमात जो है तहरीक इंसाफ है, और सोशल मीडिया के जितने हमारे दोस्त हैं सब के सब इमरान खान साहब के साथ हैं, और वो बेलौस हैं। इसमें शायद भाई बात ये है कि आप सब लोग तो ये कहते हैं कौम आपके साथ है, आप लोग इमरान खान साहब के साथ हैं, चले इसमें हमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी तहरीक नहीं बन सकी। और होता ये है कि माजी में हमने ये देखा है कि जमातों के लीडर बैठते हैं सऊदी अरब में, लंदन में बातें करते हैं, आपका लीडर तो खुद जेल में बैठा हुआ है और बाहर आप लोगों से कोई तहरीक नहीं बन रही, ये तनकीद होती है। तो भाई, इससे और क्या बड़ी तहरीक होगी कि डी चौक में, आपने कभी तारीख में सुना कि डी चौक में किसी भी जमात के ऊपर, क्या इससे पहली दफा ये नहीं हुआ डी चौक में प्रोटेस्ट तहरीक इंसाफ का, हमारा जो 26 नवंबर को हुआ, इससे पहले भी हुए? कभी क्या आपने सुना कि इधर किसी के ऊपर शेल भी मारे गए, हमारे ऊपर गोलियां चलाई,
हमारे कारकुनान को शहीद किया गया, हमारे कारकुनान को जख्मी किया गया, उनको एबडक्ट किया, उनको जेलों के अंदर डाला, हमारे कम बेश 11-12 हजार लोगों को इधर से अरेस्ट किया। तो इससे और बड़ी क्या तहरीक होगी कि इनको हमारी तहरीक कमजोर करने के लिए या हमें वहां से निकालने के लिए इनको गोलियां चलानी पड़ी। तो देखिए इससे और बड़ी क्या सबूत हो सकती है कि लोगों ने, पाकिस्तानी कौम ने अपने महबूब लीडर के लिए सीनों के ऊपर, सर के ऊपर गोलियां खाई हैं। और उसके बाद आप तो यहाँ से फिर पैदल खैबर पख्तूनख्वा गए थे, बल्कि मेरे ही आपसे वीडियो कॉल पे बात हुई थी, आप खेतों में से गुजर रहे थे। लेकिन अब एक और चीज जो बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है कि ईद के बाद क्या कोई आप लोग दोबारा एहतजाज करेंगे? ईद के बाद क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, उसके ऊपर हम बड़ी संजीदगी से गौर कर रहे हैं। असल में हमारे ये तहरीक जो थोड़ी सी कमजोर पड़ गई या आपको थोड़ी सी मूवमेंट कम नजर आ रही है, उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि हमारे बहुत बड़ी तादाद अभी भी, मेरे ख्याल में अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर रहा था, हमारे 165 कारकुनान जो है उनकी अभी रुपकार जमा हो, उनकी रिहाई हो गई है। तो इस टाइम तकरीबन हमारे 1000 से कम 700-800 हमारे कारकुन अभी भी जेलों में हैं। तो इंशाल्लाह इसी वीक वो भी तकरीबन उनकी भी रिहाई हो जाएगी। तो जब हमारे कारकुनान सब जेल से निकल आएंगे ईद के बाद इंशाल्लाह फिर हम तैयारी भी करेंगे, और जो पार्टी की डायरेक्शन होगी, सूबाई सदर है जुनैद अकबर, वो जो कहेंगे, इमरान खान साहब जो कहेंगे, जैसा वो चाहेंगे, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह तहरीक को हम दोबारा उठाएंगे। और आखिर में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात की बात होती है, बहुत सारे लोगों पे इल्जाम भी लगते हैं। वैसे आपकी जमात वो है कि मुखालिफ तनकीद करे या ना करे, आपका अपना वर्कर भी तनकीद करता रहता है कि वो भी ऐसा है, वो भी ऐसा है। तो वो जो इख्तलाफात हैं उससे कोई फर्क पड़ता है? और फॉरवर्ड ब्लॉक अब हुकूमती दोस्ती, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट हुकूमती शख्सियत ने कहा कि तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और सेंटर में भी बन जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा में भी बन जाएगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है आपकी जमात? देखिए, जमातों के अंदर इख्तलाफात भी होते हैं, और असल में हमारा मसला ये है कि अभी अगर मैं आपको, जब नवाज शरीफ लंदन भाग गया था डील करके 2002 में, तो क्या मुस्लिम लीग काफ नहीं बनी थी? तो पाकिस्तान पीपल पार्टी कौन सी उसमें पीपल पार्टी बन गई थी? पेट्रियट क्या नहीं बनी थी? इस तरह जमातों के अंदर ये चीजें चलती रहती है। पर बन रहा है कोई फॉरवर्ड ब्लॉक आपके? नहीं, कोई ऐसे फॉरवर्ड ब्लॉक बना कि जिसने सियासत नहीं करनी ना, वो इमरान खान का साथ छोड़ दे। जिसने सियासत नहीं करनी, क्योंकि बस ये आखिरी दफा है, वो इमरान खान साहब को दगा दे दे, धोखा कर ले। जो भी इमरान खान साहब को धोखा देगा, जो भी इमरान खान साहब के साथ बेवफाई करेगा, कौम उससे पीछे हट जाएगी। और इबरत देखिए, इससे पहले बड़े बड़े नाम, परवेज खट्टक, महमूद खान, कितने बड़े बड़े नाम, जहांगीर तरीन, इस अलीम खान, वो चलो वो तो 47 के जरिए आ गया। इसी तरह बड़े बड़े नाम जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आपको मीडिया की जीनत बने नजर आते थे, आज वो कहाँ है? आज आपको शायद खट्टक इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि वो इमरान खान के साथ है। उसने बेवफाई नहीं की, उसने धोखा नहीं किया, उसने दगा नहीं दिया। अगर मैंने किया होता तो आज मेरा भी नाम ना होता। तो असद उमर, कितने बड़े बड़े नाम, आज शायद खट्टक आपके साथ बैठा है। ऐसा जमाना था कि 4-5 लोग ही मीडिया की जीनत बनी हुए होते थे। आज मेरा ट्वीट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टीवी शो में दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इमरान खान साहब के साथ दगा नहीं किया, मैं उनके साथ खड़ा रहा, कौम ने मुझे इज्जत दी, अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी। आज मैं बड़ी इज्जत के साथ आपके साथ भी बैठा हूँ, पूरी मीडिया के ऊपर बैठा हूँ, लेकिन जिन्होंने धोखाबाजी की वो आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। शाहिद खट्टक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी।